us to sit with him and tell him about what we think and then he tells us about where we are going wrong and where we are right. There is so much of knowledge to gain. On the other hand, Nani is always cooking all my favorite dishes, and always whenever Nani makes dal dhokle or puda, and if I am not around, it is always saved for me. And Nani is also very considerate all the time. It's every year we celebrated Nana Nani's anniversary in Bombay, but this year in 30 years, all of a sudden we hear Nana Nani's golden anniversary, and now we are looking forward for a lot of fun and hope you have many more years of togetherness. Mummy Papa, wow, it's a great moment for me to wish you 50 years of togetherness, a journey through thick and thin. Surely must have been a roller coaster ride. सभी के साथ ये जिंदगी इतनी आसान तो होती नहीं है, लेकिन ये 50 साल किस तरह गुजारे होंगे आपने. It's an amazing feeling, an awesome feeling. From within the depth of our hearts, we express our great wishes for you. मम्मी पापा हर साल आते हैं बॉम्बे और हर साल आपकी एनिवर्सरी मनाते हैं, लेकिन इस साल तो कुछ नयापन ही है. एक अजीब सी खुशी है मन में, एक अजीब सी फीलिंग है, पता नहीं क्या कैसे होगा. एक मस्ती बचाने हम सब आ रहे हैं आपके पास बहुत ही जल्दी. अब तो दिन गिनते ही वक्त कैसे निकलेगा पता नहीं, लेकिन हाँ, और आप लोग हमारे इंस्पिरेशन हमेशा रहेंगे. हम लोग हर सिचुएशन में कैसे सामना करना चाहिए ये कोई आपसे सीखें. हर जगह साथ साथ हाथ में हाथ मिलाकर कंधा मिलाकर कैसे चलना चाहिए ये कोई आपसे सीखे. मुसीबत का सामना करते हुए फिर भी हंसते हुए चलना और घबराना नहीं, इसकी एक मिसाल आपने हमारी जिंदगी में कायम की. और ये मैं चाहती हूँ कि यही चीज़ अपनी जिंदगी में उतारूँ और खुशी खुशी आपके पदचिन्हों पर चल के अपना जीवन बिताऊँ. हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी मॉम एंड डैड. Loads of love and wishes from us all here. Good morning मम्मी पापा, आपको शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. हम इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे. Ultimately we have come on the day. We really want to feel our heart to you that we really love you and give you our best of the feelings and good wishes on this occasion. I would like to really thank you for the training you have given to your daughters. The way they have been trained, the way they have come to the families, the different families, and they have really created an extra name to the family by their presence. And it's really proud to have it's really proud for us to be a part of your family, and we love to be with you for a long time. Wish you once again a very very happy anniversary. शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. और आपने भी जो स्नेह और प्यार हम लोगों को दिया है और हमें हमेशा ये याद रहेगा. और आपको भी बहुत बहुत शादी की शुभकामनाएं. चाचा चाची आपको शादी की स्वर्णिम वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई. हमारे छोटे छोटे चाचा चाची साथ चलने वाले, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आपको हमेशा हमने यूं ही साथ चलते देखा है. चाची तो बहुत ही महान है, क्या कहना. चाची तो लाल लड़ाने की एक्सपर्ट है ही, हमेशा हमको इतना प्यार और स्नेह देती है. इसी तरह आपका प्यार हमारे लिए बना रहे, और चाचा इसी तरह आपका साथ उनके साथ बना रहे, और हमारे साथ भी आपका स्नेह और प्यार भरा आशीर्वाद हमको यूं ही देते रहिए, और आप हमारी प्रेरणा बन रहे. हैप्पी एनिवर्सरी. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द 50th anniversary. Thank you. Dear Mamajis and Mamijis, today we as a family are very happy to be part of Kudum Milan celebration. 50 years must have given you countless opportunities to give up, but you never did. Congratulations for your perseverance. Pa, they have been together for so long, they should be granted a PhD just in each other.
We all wish you many years of happiness, happiness, togetherness ahead. Congratulations both Mama ji and Mami ji. 50 years of togetherness sounds so wonderful. I can say only to both these couples are an inspiration for us and for young generation. Wish you all the best both Mama ji and Mami ji. छोटे मामा जी मामी जी को मैं इस ओकेज़न पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके साथ प्लेटिनम जुबली भी बनाने का मौका मिलेगा अगले 50 सालों में। विवाह की स्वर्ण जयंती पर हम दोनों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। I also wish both my elder brothers a very happy golden jubilee, and I wish them many more years of togetherness. And I wish to point out at this moment that my brother Chandrasekhar has taken a landmark decision of starting a new business in Pune, which was a turning point for our family to grow as today. My second elder brother Deshbandhu has also a landmark decision taken while he was in business. He parted with our family business and wanted to start of his own, which he started without anything in his hand, and he has shown the success as he is today. चाचा और चाची जी को शादी की स्वर्ण जयंती की बहुत बधाई। चाचा चाची, हमने आप लोगों से जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। आप हमारी प्रेरणा हैं। भगवान इसी तरह से आप लोग को लंबा जीवन प्रदान करें और हम आप लोगों से जिंदगी भर सीख लेते रहें। आपकी 50th एनिवर्सरी पे आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। हैप्पी एनिवर्सरी चाचा एंड चाची। हाँ जी, राम राम। आप दोनों को शादी की 50वीं साल बहुत बहुत बधाई हो। छोटे भाई जी, भाभी जी, आपको शादी की 50वीं साल बहुत बहुत बधाई हो। राम राम। आज सगा सगी जी की गोल्डन जुबली के इस शुभ अवसर पर हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, वे हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हमारी घर की लाडली बेटी ने बेटी से बढ़कर पाया प्यार यहाँ, पूरी हुई उसकी हर ख्वाहिश और पाया खुशियों का जहां। प्रतिभाओं को उड़ान मिली और उड़ान को मिला आकाश। हर खुशी हर मोड़ पर मिला नीरज जी का सारथी जैसा साथ। हर राह को मंजिल मिली और उसके सिर पर रहा आप दोनों का हाथ। लंबी उम्र की दुआ करते हैं, लंबी उम्र की दुआ करते हैं। ईश्वर से मांगी आपकी खुशी, सफलता आपके कदम चूमे, एक पल गुम न हो आपकी हंसी। Many happy returns of the day. मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है, मैं और मेरी पत्नी अनीता, किसी को नहीं पता हो तो हमें सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलो। हाँ, इसलिए मैं पहले बोल दिया ना, बाई चांस कोई हो ऐसा। तो हमारे दोनों भाइयों की शादी की स्वर्ण जयंती पर मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर ने मुझे अपने परिवार की पुरानी यादें समेटने का एक मौका दिया है। ये जो प्रेजेंटेशन मैं देने जा रहा हूँ, ये 1950 से 1980 तक 30 साल की प्रेजेंटेशन बनाया मैंने, यादें प्रेजेंटेशन। और ये आज से 35 साल पहले की बातें हैं। तो उसमें कुछ लोग शायद फोटो पहचाने में मुश्किल करें, मैं उसका आंसर दूंगा, कोई पहचान नहीं पाए तो। इस यादें प्रेजेंटेशन में मैंने परिवार से मिले अनुभव और भावनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है।
दो भाई श्री राम निवास एवं श्री राम बलियार जी 30 साल सन 1950 से 1980 तक साथ रहकर परिवार को चलाने की कहानी है। मेरे छोटे भाई विनोद ने सही तथ्य और तारीखों को बताने में मेरी इस प्रोग्राम में मदद की है। मेरी इस प्रोग्राम में फिनिशिंग करने के लिए मेरी बेटी पूर्णिमा ने भी मुझे हेल्प की है। इस यादें प्रेजेंटेशन में यदि कोई मुख्य बात छूट जाए, किसी को बहुत सारी बातें याद होगी, शायद मैंने कुछ छोड़ दिया हो, या किसी को किसी प्रकार की बात से कोई दुख पहुंचे, तो मैं उसके लिए बहुत माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने कोशिश की है कि किसी को किसी प्रकार का इससे आहत न हो। इस यादें प्रेजेंटेशन के 2 भाग हैं। पहले भाग में मैंने बड़े जन अपने पिताजी बाबा जी के बारे में और चाचा जी और बुआ जी के बारे में परिचय दिया है, जो हमारे परिवार के मेरे हिसाब से स्तंभ रहे हैं। स्तंभ मतलब उनके बिना ये परिवार इतना आगे बढ़ता नहीं था और इतना स्ट्रांगली। दूसरे भाग में मैं 30 साल में जो संयुक्त परिवार रहा, जो मैंने देखा सुना, उसके बारे में विवरण है। इसमें उस समय के फोटो भी शामिल किए गए हैं जो आपके स्क्रीन पर आज दिखाए जाएंगे। मैं पहले बताया, उस फोटो में बहुत से लोग शायद अपने आप को भी पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फोटो करीब 35 साल पहले के हैं। आई होप आप सब लोग इसको एंजॉय करेंगे। पहला पार्ट है 0 हमारे परिवार के स्तंभ श्री बनारसी दास जी करोड़ीमल, हमारे बाबा जी बनारसी दास जी का जन्म 1900 में सालावास हरियाणा में हुआ था। वह हमारे परिवार में श्री गंगा सहाय रघुनाथ सहाय के परिवार से गोद आए थे। दोनों परिवार हमारे गांव बेरी में आसपास ही रहते थे। उनकी शादी भिवानी के काजी परिवार की श्रीमती कमला देवी से हुई। बाबा जी, जैसा मैंने सुना है, सट्टे का व्यापार करते थे। उनका निधन बहुत छोटी उम्र 45 साल की एज में ही हो गया था। उनके 2 पुत्र रामनिवास जी और राम बलियार जी थे और एक पुत्री उमरावती बाई हैं। श्रीमती कमला देवी दादी जी 4 बहनें तथा 3 भाई थे। सन 1935 में दादी जी तथा बाबा जी अपने परिवार के साथ मुंबई आए। वह पहले मलारवाड़ी और बोरीवली में रहते। दादी जी आर्थिक स्थिति को संभालते हुए काफी कठिनाइयों से परिवार का संचालन कर रही थी। उनको भगवान में बहुत विश्वास था। वह काफी व्रत और पूजा करती थी, जिनका परिणाम उन्हें भविष्य में मिला। कुछ समय बाद पूरा परिवार लक्की हाउस बिल्डिंग बोरीबंदर में रहने चला गया। यहाँ पर कागजी परिवार भी रहता था। बढ़ते हुए परिवार की वजह से बाबूजी अपने परिवार के साथ चीरा बाजार में रहने लगे थे। 1963 में मां के अचानक निधन के कारण परिवार पर भारी दुख आ पड़ा। अब दादी जी पर 2 बेटों, 1 बहू तथा 17 बच्चों की जिम्मेदारी थी, जो कि आज के जमाने में लोग सोच भी नहीं सकते। दादी जी ने परिवार को 30 साल तक साथ में बांधे रखा। उन्हें सभी बच्चों से बहुत लगाव था। वह उनके खाने पीने तथा रहन सहन का पूरा ध्यान रखती थी। दादी जी ने कभी भी धन संचय नहीं किया। जैसे ही उनके पास कुछ जमा होता, वह परिवार में बच्चों को बांट देती थी। दादी जी बहुत परिश्रमी तथा अनुशासन प्रिय थी। दादी जी का अपने कागजी भाइयों के परिवार में बहुत मान सम्मान था और वह उनके हौसले की प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपनी सोच को बदलते हुए समय के अनुसार ढाल लिया था। उनके दोनों बेटे उनकी हर बात का मान रखते थे। उन्होंने अपने समय में अपने एक पोते तथा अपने एक पुत्र के निधन का सामना भी किया। अपने परिवार और अनुशासन, सहनशीलता और आत्मविश्वास की छाप छोड़ते हुए 1997 में उनका स्वर्गवास हो गया। हिसाब किताब में बहुत प्रतिभाशाली थे। बाबा जी की मृत्यु के पश्चात 14 वर्ष की कम आयु में उन पर परिवार का बोझ आ गया। इस कारण वह काम करने के लिए डेयरी छोड़कर कराची चले गए।
उनकी शादी भिवानी की श्रीमती सावित्री देवी से हुई। तत्पश्चात मेरा बेटा बहुत से मिलने आता तो उनके चरण स्पर्श करता था। सेठों के साथ रहने से उनके रहन सहन तथा आचरण पर